हैं, हर बार कुछ डिफरेंट करते हैं जो कि इनको बाकी सब स्कूल से अलग करता है। हम लोग जो है आजकल अपने कल्चर को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे मुझे लगता है ऐसे इवेंट से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। हैं। इट इज़ अ ग्रेट स्टेप टू टीच अवर चिल्ड्रन दैट वी शुड स्टिक टू आवर रूट्स। उन्होंने सारा कुछ कवर अपनी कहीं ना कहीं एक रॉ एनर्जी और एंथुसियाज्म से किया है। अच्छा है, very good initiative by the school. Child an initiative to perform in front of many parents and their grandparents. हमारे J&K स्टेट के डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट किया है, बच्चों को उसके बारे में बताया है। विद अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस दे आर लर्निंग लाइक एनीथिंग। क्या थर्ड का बच्चा, क्या 10th का बच्चा, दे आर सो शार्प माइंडेड एंड दिस जनरेशन इज क्वाइट अमेजिंग। We look forward to celebrating the rich diversity of culture with our little ones. Thank you for being a part of the extended Sinostral family. Today we have organized this event to acknowledge various cultures, to introduce to our kids such cultures, those cultures which are an integral part of India. But you know, in our education system, no one tries to introduce these cultures much. Responsibility of ours as a teacher, as a guardian, as an academician, to introduce the local cultures to our students, because this is very important for the holistic development of all. I would like here to quote Dr. Swami Vivekananda. According to him, a modern man must know 3 of the languages. One is Sanskrit in order to connect to its roots. The other one is English in order to connect internationally. And the third one is regional language, so that our generations would able to communicate well and they can bear and think around the surroundings through heart and spirit. इवेंट आज कल्चरल इन्होंने करवाया है। मुझे लगता है ऐसे इवेंट से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है, और इससे ऐसे इवेंट्स होने से पेरेंट्स को भी एक मतलब पेरेंट्स मीट भी एक टुगेदर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक मीट में शामिल हुए हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि एक अच्छा एक वो मैसेज पड़ता है सोसाइटी को भी और बच्चों के लिए भी। मुझे इस इवेंट का जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि आजकल की जनरेशन के लिए जो इन्होंने थीम रखा है कल्चरल इवेंट कि वी आर फाइटिंग टुवर्ड्स इंग्लिश एंड हिंदी, दो इट इज़ अ ग्रेट स्टेप टू टीच अवर चिल्ड्रन दैट वी शुड स्टिक टू आवर रूट्स। हमारी कल्चर डोगरी, इन्होंने कश्मीरी, डोगरी, गोजरी सब लैंग्वेज के बारे में जो लिखा है, इट इज़ अ वेरी गुड मैसेज एंड इट शुड बी गिवन a huge publicity so that all of the youth और जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं ये सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमें अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए। This event is actually a very good initiative for especially the small kids, because it boosts up their confidence. उनका confidence बढ़ता है, उनको एक confidence मिलता है, stage phobia ख़त्म होता है, and बच्चे जो हैं वो थोड़े से बनते हैं, self dependent बनते हैं, and it is a very good initiative I think. बच्चे पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि यहाँ पे different cultures आपको देखने को मिलते हैं, एंड बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पीली इस चीज़ को इन्जॉय भी करते हैं, एंड दे टेक पार्ट इन दिस, एंड अच्छा है, वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द स्कूल. And we are here at Sinostral cultural event, as you can see. It is their 7th celebration year of the school, and I would like to say that this school is really excellent, as it gives a child an initiative to perform in front of many parents and their grandparents, which boost their inner capabilities. As here they taught us about, as we know that India has different cultures, different languages, so over here they taught us about various languages. We saw the dances and performances of the children from very little pre-nursery to UKG and LKG, where they were like performing on different religion languages, and their performance taught us about
what, like if we are saying in Jammu, we have Dogri languages, Punjabis are there, everyone is there. आज का इवेंट बहुत ही अच्छा था, मुझे लगा बहुत ही थॉटफुल इवेंट है। एनुअल फंक्शंस तो होते रहते हैं, बट जिस तरह से इन्होंने एक कल्चरल इवेंट किया है, हमारे J&K स्टेट के डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट किया है, बच्चों को उसके बारे में बताया है, आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल। और मैं इस स्कूल से अब अराउंड 4-5 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। मेरी एल्डर डॉटर भी यहीं पे थी, अब मेरी यंगर डॉटर भी यहीं पे है। तो आई ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ डॉक्टर रिंकू एंड द होल टीम। आई थिंक ये हमेशा एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, हर बार कुछ डिफरेंट करते हैं, जो कि इनको बाकी सब स्कूल से अलग करता है। सिनोजरल इंटरनेशनल स्कूल की ओर से कल्चरल इवेंट जो है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर किया गया। छोटे छोटे बच्चे जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे और मेहनत दिखाई दे रही थी। लंबा सफ़र है सिनोजरल इंटरनेशनल स्कूल का, और जिस तरह से वो बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ ही इस तरह के इवेंट जो करते हैं काबिल तारीफ़ है। और रीजनल की अगर बात की जाए तो काफ़ी तवज्जो रहती है। और अगर इंग्लिश की बात की जाए, क्योंकि इंग्लिश तो इंटरनेशनल है, हर कहीं भी जाना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो उसमें तो उनको महारत हासिल है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त अपूर्व गुप्ता है, यही बताएंगे कि किस तरह से पूरा जो है इवेंट का इन्होंने तैयारी की थी और स्कूल के बारे में बताएंगे। वेलकम, आपका हमारा स्वागत है हमारे चैनल में। अपूर्व बताइएगा किस तरह से रहा पूरा इवेंट की तैयारी, क्योंकि मुश्किल रहती है छोटे छोटे बच्चों को तैयार करवाना। जी, ये जो कल्चरल सेलिब्रेशन है, इसका कॉन्सेप्ट मेरे मदर ने दिया था जब हमने इसको फाइनलाइज़ किया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास ये था कि इतने छोटे बच्चे होंगे, वो उनको हो सकता है कि अपने रीजनल कल्चर्स की इतनी जानकारी भी ना हो, उस पर वो कैसे एक्ट करेंगे, उन परफॉर्मेंस में कैसे वो हार्ट एंड सोल अपना पूरा पुट करेंगे। बट देन अगेन उन्होंने जितनी एनर्जी, उन्होंने सारा कुछ कवर अपनी कहीं ना कहीं एक रॉ एनर्जी और एंथुसियाज्म से किया है। एंड देन अगेन टीचर्स, मैनेजमेंट एंड कहीं ना कहीं उनका तो रोल सबसे बड़ा रहता ही है। मेरी मदर का सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज हर परफॉर्मेंस उन्होंने मतलब अपने पर्सनली डिसाइड की थी, उसे कोरियोग्राफ करने में भी काफ़ी सपोर्ट दिया। देन अगेन मैंने भी कुछ अपना सपोर्ट दिया है कि जैसे कोई पंजाबी में भांगड़ा कर रहे हैं, सो एक्सप्रेशन उसमें एक स्माइलिंग जाएगा, जबकि एक कश्मीरी डांस आ रहा है उसमें अलग एक्सप्रेशन जाएगा। सो कहीं ना कहीं वैसी कुछ चीज़ें थी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वही इस पूरी सेलिब्रेशन को मतलब इतना ग्रैंड बनाते हैं। देन अगेन एनुअल डे एंड आपके स्पोर्ट्स डे होते रहते हैं, बट उसमें इतनी यूनिटी फील नहीं होगी, बिकॉज वी आर अ डाइवर्स नेशन। कितने रीजनल मतलब कल्चर्स हैं हमारे, उन सब की डाइवर्सिटी के लिए ऐसा ही एक इवेंट था। एंड आई एम ग्लैड कि वैसा इवेंट एक सक्सेसफुल हो पाया। बहुत खूबसूरत इवेंट यहाँ पर हुआ है। और जिससे उसने कहा कि पूरी मैनेजमेंट जो है वो एक इस जुट में लग जाती है कि जो चीज़ें निकलनी चाहिए बहुत अच्छी निकल जाए, और वो स्टेज पर दिख भी रही थी। बच्चों के साथ जो है वो सारे लोग जो हैं जो स्कूल के हैं वो भी साथ ही थे, वो भी लग रहा था ऐसा कि वो भी परफॉर्म वहाँ पर कर रहे हैं। और जिस तरह से देखें स्कूल की बात, कितने सालों का सफ़र अभी स्कूल का हो चुका है? जी, हमें मोर देन 7 ईयर्स हो चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं एक ये रिच एक्सपीरियंस होता है। हमने कहीं उतार चढ़ाव, कोविड का सफ़र देखा है, उसमें भी हमने इम्पार्ट किया है अपना सारा करिकुलम एंड सिलेबस एंड एजुकेशन। सो दोज थिंग्स आर क्वाइट कमेंडेबल। मतलब हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट, हैट्स ऑफ टू द टीचर्स, जो इतना एंथुजियाज्म एंड मोटिवेशन दे आर पुटिंग लाइक एनीथिंग। एंड द चिल्ड्रन, मतलब दे आर स्वीट हार्ट्स। सो क्योंकि बच्चों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे, ये इतने भी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के हों, ये बहुत छोटे बच्चे हैं। तो इन लोगों को समझाना, उनको एक इकट्ठा लाना और साथ साथ में उनको उस तरीके से ट्रेन भी करना पढ़ाई में भी, तो वो कैसे मैनेज? आई थिंक द बिगेस्ट रीजन इज द ग्रोथ कर्व ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट एज। It's quite high. They learn very fast. They learn exponentially. So with a little bit of guidance, they are learning like anything. क्या third का बच्चा, क्या 10th का बच्चा, they are so sharp-minded, and this generation is quite amazing. This is Gen Z. और पेरेंट्स का किस तरह से आपके साथ रहता है, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है? I think parents are one of the most important pillar apart from the school and the children itself, because a parent who puts effort, even a little bit of effort, the child would do much better than रेस्ट ऑफ दी किड्स। सवाल बहुत सारे पेरेंट्स के रहते हैं कि हम स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो स्कूल कैसा होगा, किस तरह का रहेगा, किस तरह से हमारे बच्चों को संभाल पाएगा, वो सवाल बहुत सारे होते हैं। विद टाइम देयर क्वेरीज गेट रिजॉल्व। सो सबसे पहला तो ये है 24/7 हम क्वेरीज का आंसर करने का ट्राई करते हैं, सबसे पहला ये है। देन अगेन एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन अ रिटन फॉर्मेट ऑल्सो। कुछ ऐसा नहीं है वर्बल रहेगा और ऐसा नहीं रहेगा, प्रॉपर गाइडेंस है। सो मैनेजमेंट जो है पर्सनली दे लुक इनटू द मैटर। एंड देन अगेन आवर चिल्ड्रन आर सो ब्रिलियंट कि मेरे को एक इंसिडेंट याद आया कि एक आई थिंक दैट वाज आल्सो अ कल्चरल इवेंट, इट वाज लंगर। आई थिंक द किड वाज टेलिंग देयर पेरेंट्स कि नहीं मम्मा इसे ऐसे आते हैं, ऐसे करते हैं। सो आई थिंक एक ये कंबाइंड एफर्ट है। विदाउट द कंबाइंड एफर्ट नथिंग इज पॉसिबल। पेरेंट्स का उनके पार्ट पे एफर्ट है, द मैनेजमेंट प्लेज इट्स ओन रोल, एंड वी एट द बैक सपोर्ट। आई एज अ एडमिनिस्ट्रेशन एंड माई मदर फ्रंट बैक
ऑल एंड सोल शी इज़ द तो स्पिरिट इस ऑफ तरह द का स्कूल. सफ़र आगे भी जारी रहेगा जिस तरह कि आज इवेंट रहा है और साथ ही साथ हर चीज़ को लेकर Yes, of course, we'll try to bring more such innovative things. But then again, so जितना सपोर्ट आपका आएगा, जितना पेरेंट्स का हमारे साथ सपोर्ट आएगा, जितना उनका इसमें let's say पार्टिसिपेशन आएगा, so उसके बेसिस पे we'll try to do more of the innovative things. शुक्रिया। और बहुत ही अच्छा इवेंट यहाँ पर हुआ है, कल्चरल इवेंट किया गया और जिस तरह का इवेंट का थीम था वो बहुत बेहतरीन था। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है ना कि अपने रूट्स के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, और यही इन छोटे छोटे बच्चों को बताया गया है कि अपने रूट्स के साथ जुड़िए और फिर आप देखिए किस तरह से पूरे वर्ल्ड में आप कमाल करेंगे। और छोटे बच्चे को जिस तरह से सिखाया जाएगा शायद फ्यूचर भी उसी तरीके से वो ग्रो कर पाएंगे, और यही चीज़ें स्कूल की तरफ से करवाई जा रही है। बेहतरीन इवेंट था और आगे भी इस तरह के कल्चरल इवेंट इनकी तरफ से लाए जाएंगे और बच्चों की ग्रोथ के साथ जो जो चीज़ें उनको चाहिए वैसे ही करवाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।